مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی عمید خان صاحب ہیں اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیہ کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم عمید بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمان بھائی، اصل میں جس علاقے سے آتا ہوں، میں انڈیا میں ایک جگہ ہوتی ہے دلی اور پنجاب کے درمیان میں ہریانہ اسٹیٹ میں میرا ہوم سٹی ہوتا ہے جیند، اور آج ماشاءاللہ 1 نومبر ہے، اور آج کے ہی دن ہمارا ہریانہ پنجاب سے الگ بھی ہوا تھا۔ یہ اتفاق ہے کہ آج کے دن میں انٹرویو دے رہا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ تو احمدیت کی قبولیت ایک معجزہ ہے نعمان بھائی، وہ ایسے ہے کہ ہم بالکل اسلام کے نظریے سے بالکل اندھیرے میں جیسے تھے۔ ہمیں یہاں تک کہ صرف مسلمان کے شبد سے ہم واقف تھے، بٹ مسلمان ہوتا کیا ہے، سلام ہوتی کیا ہے، سلام کا سلام کا جواب کیسے دینا ہے، کلمے کے معنی کیا ہیں، یہ دور دور تک ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ ادھر جو اکثریت ہے وہ ہمارے یہ ہندو بھائیوں کی زیادہ ہیں، اور ماحول ادھر بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ غیر احمدی جو ملا ہیں، مولوی لوگ ہیں، یہ بس نکاح میں مرگت میں ادھر آتے تھے، اور ان کا اپنا جو بھی اسلام کو انہوں نے کاروبار بنایا ہے، ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کا یہ فائدہ اٹھاتے تھے اور یہ بس چلے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کبھی دین سکھانے کی کوشش نہیں کی، اور ہم نے سیکھیں گے جب ہمیں پتہ لگے گا، بیسک تو کچھ پتہ لگنا چاہیے۔ تو کچھ اتنے اندھیرے میں تھے ہم اسلام کے نظریے سے، لیکن ایک بار جماعت اسلام احمدیت کا پیغام لے کے قادیاں سے ہمارے دور ایک علاقے میں ہمارے وہ امان علی صاحب ہوتے تھے مبلغ، ابھی تو وہ مول نواسی تو آسام کے تھے، لیکن ابھی ان کی ڈیوٹی ادھر ہی ہے، بنگال میں اور آسام میں اور نیپال میں وہ امیر ہیں وہاں کے۔ تو وہ جب اسلام احمدیت کا پیغام لے کے آئے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں مولوی لوگ بڑی داڑھی والے ٹوپی والے ایسے دیکھے تھے، لیکن یہ ان کا پیغام جو تھا، ان کا بولنے کا جو طریقہ جو تھا، وہ بالکل سب کو سمجھ میں آنے والا تھا، بٹ یہ شکل و صورت سے اس طریقے کے مسلمان نہیں لگتے تھے جس طریقے سے ہم واقف تھے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک حکمت عملی سے، جیسا اب تو ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ احمدیت اسلام کا جو طریقہ کار ہیں، وہ کس طریقے سے ہم نے پیغام دینا ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہم نے پیغام انہوں نے دیا، اور ماشاءاللہ خدا کا فضل یہ رہا کہ ہم نے ان کا پیغام جو ہے وہ پسند بھی آیا، اور آگے چل کے کافی محنت انہوں نے کیا، لیکن بہت ٹائم کے بعد ہمیں بیسک اسلام سمجھ میں آیا، اور وہی اسلام جو تھوڑا بہت ہم نے پہلے سیکھا تھا اس سے بالکل ایک نمایاں تھا، ایک نکھرا ہوا اسلام کا پیغام ہمیں ملا۔ وہ یہ سب خدا کا فضل ہے، اور
उस तरीके से हम जो है नहीं अंधेरे से निकल के उजाले की तरफ आए। तो ये है नुमान भाई, मतलब ये स्टार्टिंग की जो बातें हैं। वैसे असल हकीकत तो ये है कि स्टार्टिंग में जब इस्लाम अहमदियत का पैगाम आया के बकाव में आके काफ़ी मुखालफत की। मैं उन लोगों में से मैं खुद भी शामिल हूँ। वो जैसा मैंने बताया, मैं मुखालिफों में से था स्टार्टिंग में, लेकिन खुदा जैसे जिसको हिदायत देनी होती है उनको चुन लेता है। नेक फितरत जो लोग होते हैं वही हिदायत पाते हैं। शायद हमारे अंदर खुदा ने कुछ ऐसी नेकी रखी होगी जिसकी वजह से हमने इस्लाम अहमदियत कबूल करने की तौफीक मिली। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मैं काफ़ी रूरल एरिया से भी आता हूँ, और इस्लाम अहमदियत में आने के बाद इतनी बरकतें खुदा ने दी है नहीं, तो मैं जितना भी शुक्र करूं उस खुदा को पहचानने के बाद। जमात अहमदियत के ज़रिए मैंने खुदा को पहचाना, और माशाल्लाह आज मेरे घर में एक दीनी माहौल है। सभी बच्चे बाजमात नमाज भी पढ़ते हैं, बड़े बुजुर्ग भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ गांव में मिशन भी है। और वैसे मैं अभी अम्मी के पास रह रहा हूँ गांव में, और होम सिटी मेरा जो है टाउन सिटी वो जींद है। जींद में भी हरियाणा का सबसे बड़ा मिशन जींद में है, और खुदा ने हमें उस मस्जिद और मिशन की संगे बुनियाद रखने में खाकसार को भी काफ़ी मौके मिले, और वकार अमल के भी हमने उधर काफ़ी काम किए स्टार्टिंग में। और अभी भी माशाल्लाह जो प्रोग्राम दीनी प्रोग्राम होते हैं उधर सभी आसपास के गांव के देहात के जो लोग हैं इकट्ठे हो गए, हम उधर प्रोग्राम करते हैं जमात के। जी उमैद भाई, आप हमें ये बताएं फिर आपने क्यों बैत की, किस वजह से आपने बैत की? जैसा नुमान भाई मैंने बताया आपको, एक मौजज़ा जो होता है नहीं, बस एक मौजज़ा ही लगाओ। मैं उन लोगों में से था कि जो मतलब जमात अहमदिया का मुखालिफों में से था एक मैं। लेकिन खुदा ने जब ये पैगाम लेके आते थे, बार बार जब आते थे, तो एक मौजज़े के तौर पे मेरे अंदर एक तब्दीली आई। और जैसे जैसे मैं प्रोग्रामों में या नमाजों में शामिल होता था, और पहली बार खाकसार को 2001 में मुझे कादियां जाने का मौका मिला, तो उधर मैं हकीकत से वाकिफ़ हुआ। और एक जो गलतफहमियाँ थी जो औरों के भी मतलब गैर अहमदियों से और हमारे रिश्तेदार मुखालिफ हैं आज भी। तो वैसे हमारे जो 50% जो रिश्तेदार हैं वो अहमदियत में हैं, और जो पहले से थोड़ा थोड़ा इस्लाम जो जानते थे वो कट्टर टाइप के हैं, दाढ़ी टोपी वाले, वो मुखालिफ हैं। तो ये बस ये जो गलतफहमी थी, ये कादियां मेरे जाने के बाद मेरे अंदर से जो भी गलतफहमियां थी वो सारी। जी उमैद भाई, अगर आप हमें बाज़ वाक़यात सुना दें जिसमें उन लोगों ने आपकी मुखालफत की, उन्होंने क्या मुखालफत की थी? मुखालफत तो बस जैसे गैर मुल्लाओं का, ये तो एक उन्होंने रटी रटाई, अरे इधर हमारे इलाके में बात होती है कि उनकी रटी रटाई बात बस यही होती है कि ये जो कादियानी हैं ये तो ईसाइयों का लगाया हुआ पौधा है, ये तो नाउज़बिल्ला इस्लाम से दूर दूर तक इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मस्जिदों में वो बुत रखते हैं, ये जो है नहीं ये मोहम्मद साहब को नबी नहीं मानते हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें थी, ये कुरान को नहीं मानते, या हदीस को नहीं मानते हैं, ये तो दाढ़ी से भी नहीं है, ये तो टोपी से भी नहीं है, ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो लोगों को
बरगलारे हैं, बकारे हैं और ऐसी मतलब के तरीके से ये मुखालफत अब भी करते हैं और पहले भी इसी तरीके से मुखालफत करते थे। मैं भी उन्हीं में शामिल था जैसे मैंने बताया, लेकिन मेरी सारी गलतफहमियाँ, मेरी कादियाँ मुझे तौफीक मिली कादियाँ ज़ियारत करने की, तो मेरी सारी गलतफहमियाँ दूर होगी और उसके बाद से आप यूँ समझो कि मेरे अंदर एक ऐसी तब्दीली आई है कि मेरे अंदर एक ऐसी तब्दीली आई। मान भाई वो जो जैसा मैंने बताया वो थोड़ा बहुत आधा अधूरा इस्लाम उनके सीखा हुआ था, वो यूं समझ लो कि एक मुल्लाओं के चेले भी लगा सकते हो आप उनको। वो आज भी मुखालिफ हैं हमारे, जैसे वो पहले थे, लेकिन वो सिर्फ इस्लाम अहमदियत के मुखालिफ हैं और किसी भी चीज़ के वो मुखालिफ नहीं है, वो आज भी नहीं है। जैसे हमारे वो जो 50% से भी कुछ ज़्यादा ही मानो जो गैर अहमदी हैं, 50% मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वो जो 5% का जो फ़र्क है बीच में, वो हमारी मुखालफत नहीं करते और उनका समर्थन नहीं करते, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पीर परस्ती वाले हैं आज भी। और इधर इंडिया में ये जो गैर मुस्लिमों में एक फिरकाबाजी है, ये बहुत से मतलब के सत्संग होते हैं, ये होते हैं, वो उनके अनुयायी बने हुए हैं, मुसलमान हैं, सिर्फ वो निकाह में और मैयत पे ही मतलब गैर अहमदी मुल्लाओं को बुलाते हैं और वो बाकी सारे टोटल काम हैं, लिबास से वो मुसलमान नहीं हैं, सलाम अच्छे से वो लेते नहीं हैं, इस्लाम का अगर पैगाम देने लग जाए तो वो एक नफ़रत की नज़र से भी बात करते हैं। उन्हीं लोगों में से, उनकी मुखालिफ नहीं करते और उनकी वो इस्लाह भी नहीं करते। असल उनको तौफीक ही नहीं है इस्लाह करने की, असल बात तो है ये, जहाँ तक मैं समझा हूँ। असल जो इस्लाम की और मुसलमानों की इस्लाह करने की जो जिम्मेदारी है, वो अल्लाह ताला ने जमात अहमदियत को दी है और जो कि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरी इंडिया में से चल के ये दुनिया के किनारों तक ये पैगाम अहमदियत इस्लाम का पैगाम जो दे रही है, वो सिर्फ एक वाहिद जमात है जिसको गैर अहमदी लोग कादियानी के नाम से ज़्यादा हमारे इलाके में फेमस है, जबकि वो हमारी जमात तो इंटरनेशनल लेवल पर जमात अहमदिया, जब हम उनको बताते हैं वो हमें कादियानी बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई हम कादियानी नहीं हैं, हम तो हरियाणा के हैं, जींद के हैं या जिस भी इलाके हैं। कादियान के तो वो लोग हैं जो कादियान में रहते हैं और हम उस मसीह बोला फिर आप भी तो कादियानी हो गए। हम कादियानी नहीं हुए, हम अहमदी हुए हैं। और वो जिनको आप कादियानी बोलते हो, जिनको वो तो आप एक जो बंदा जिधर हिजरत कर जाए, जिधर उसका रहन सहन हो, आप उस इलाके के नाम से आप पहचान रहे हो उनको। हम तो रह तो इधर ही रहे हैं, असल आपको पता नहीं है कि कादियानी क्या है और जमात अहमदिया क्या है। कभी आप टाइम निकालो, इंशाल्लाह आप जब ज़ियारत करोगे कादियान की तो कम से कम आपको पता लगेगा कि कादियानी क्या होता है, अहमदिया क्या होता है, असल इस्लाम क्या होता है, इस्लाम की शिक्षा ही क्या होती है। तो एक दो बार दोस्त गए हैं, वो ज़ेर तबलीग हैं, तो उन पे अच्छा असर भी हुआ है। वो पहले मुखालफत करते थे, अब मुखालफत उन्होंने छोड़ दी है। थोड़ा बहुत वो उनका रुझान अहमदियत की तरफ है। दुआ करें तो ऐसे ही मतलब अहमदियत का गलबा होना है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो बखूबी चल रहे हैं खुदा के फजल से। इंशाल्लाह। और उमैद भी अगर आप हमें ये भी बता दें कि खिलाफत की अहमियत के मुतालिक अगर आप इस पे कोई अल्फाज कहना चाहिए कि दूसरे मुसलमानों को भी पता लगे कि खिलाफत की क्या अहमियत है। खिलाफत की अहमियत जैसे
आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले बता दिया था कि इस्लाम का जो गलबा जो अभी आने वाले कुछ दिनों में होगा, मेरे बाद मेरे खलीफाओं के दौर में होएगा, और वो हुआ भी। दुनिया पे इस्लाम मतलब आज रसूल सल्लम के ज़माने में या खलीफाओं के ज़माने में जो इस्लाम जो होता था, उसके बारे में आज रसूल सल्लम ने पहले ही पेशगोई कर दी थी कि ऐसे 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 इस्लाम गालिब मुसलमान गालिब आएंगे, और वो आए भी। और फिर जैसा बताया कि मुसलमान जो नहीं मेरे बताए रास्ते से भटक जाएंगे, और वो बाद में फिर बिखर जाएंगे, फिरका परस्ती हो जाएगी, तो एक ज़माना एक अंधेरी की तरह छा जाएगा, जैसे आज रसूल सल्लम से पहले था। तो उस ज़माना में एक खुदा की तरफ से इमाम मेहदी आएंगे, जो असल जो इस्लाम है, जो आज का जो इस्लाम है, उस इस्लाम को वो लोगों के दिलों में जिंदा करेंगे। असल में वो एक फ़िरका होगा जो मतलब इन 72 फ़िरकों से अलग होगा, और उसकी पहचान भी यही होगी कि ये 72 फ़िरके उसके एक खिलाफ होंगे। और वो जो कि आज इन लोगों ने वो सच करके भी दिखा दिया है, क्योंकि ये तो सच होना ही था नहीं। ये तो आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई थी कि ऐसे-ऐसे होगा, ऐसे-ऐसे होगा। तो ऐसा ऐसा भी हुआ है। तो ये चीज़ें भी हमें जब इस्लाम अहमदियत की नज़दीक हम गए हैं, और अभी एमटीए भी लगा हुआ है, घर में भी है, और सभी इलाकों में एमटीए माशाल्लाह खिलाफत से वाबस्ता हैं, और जमात के प्रोग्रामों से पूरा फ़ायदा उठाते हैं हम। तो उससे हमें पता लगता रहता है कि जो आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोई थी, वो हूबहू मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ऐसे ऐसे बिल्कुल क्लियर होने लग रही है, लेकिन उसका फ़ायदा वही नेक लोग या नेक फितरत लोग ही उठा पाएंगे। ये जो इस्लाम का सौदा करने वाले, मुसलमानों को बहकाने वाले, ये फ़िरका परस्ती वाले, ये जो कुरान को इस्लाम के नाम पे लड़ाने वाले, लड़ने वाले, और कुरान के तावीज़ और ये बना के लोगों को गुमराह करने वाले, ये सबसे बद से बदतरीन जो मखलूक है, वो मुल्ला और मौलवी होंगे ये ज़मीन आसमान के बीच में। ये आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई आज इन लोगों ने सच करके दिखा दी है, और साथ-साथ ये भी सच करके दिखा दिया है जमात के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा रचते हैं, लोगों को बहकाते हैं, और इनकी जितनी भी पावर है मतलब दुनियावी जो भी है, हालाँकि ये उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन वक़्ती तौर से ये कुछ परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं, और ये होनी भी ज़रूरी है, ताकि जो अहमदियत पे कायम है, वो मज़बूती के साथ निखर के आएँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमें और भी मज़बूत बनाती हैं। नुमान भाई। माशाल्लाह उमैद भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत ही ईमान अच्छा, अफ़रोज़ वाक़या था। एक नुमान भाई, एक मैं जी, मौज़ा और एक मैं मेरे साथ जो एक वाक़या गुज़रा है, मैं वो पेश करना चाहता हूँ। जी, जी, बिल्कुल पेश करें। वैसे अहमदियत में आने के बाद हमारे काफ़ी जो दोस्त हैं वो मेरे से काफ़ी कम उम्र के हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत है, वैसे वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जैसे नसीब भाई हैं, एक महबूब भाई होते हैं, आजकल कुवैत में हैं, खुदाए फजल से वो भी मेरी ही तरह काफ़ी मतलब गुर्बत से निकले हुए एक अहमदी नौजवान हैं। इधर काफ़ी टाइम वो जोनल कायद भी रहे हैं। आजकल वो कुवैत में हैं, तो खुदा का फ़ज़ल हुआ है उसकी नेक नीति पे और उसकी मेहनत पे, खुदा ने फ़ज़ल किया है। इन लोगों का काफ़ी ताउन रहा है, और सभी मौल्लिम हैं, मुबल्लिग हैं, और नाज़िर हैं। कादियान में ऊपर से नीचे तक एक डोर की तरह, मतलब कि एक बंधे हुए एक जो डोर जो होती है, उसमें मोती बुने हुए होते हैं, उनकी कीमत जैसे होती है, तो ऐसे ही मतलब कि काफ़ी इस्लाह होती रहती है वक्त वक्त पे। प्रोग्राम
होते रहते हैं हमारे इलाके में भी। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैं एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ, वो बड़ा एक मुअज़्ज़ा भी कहेंगे या एक ईमान अफ़रोज़ वाक़या है। वो इतना है मेरे अंदर, इतना निखार और इतना नूर और इतनी तब्दीली पैदा की कि मैं अक्सर वो ज़िक्र करता हूँ। जैसे मैं 2008 से मुझे खुदा के फ़ज़ल से तौफ़ीक मिलती है। मैं लंदन में ज़्यादातर मैंने जलसे अटेंड किए हैं और 2008 में पहली बार मुझे तौफ़ीक मिली हमारे प्यारे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब से मुलाकात का जो मुझे मौका मिला, वो भी एक बड़ा मतलब एक जैसे चार्ज करने वाली एक एनर्जी से जैसे आदमी एक कोई चीज़ टच हो जाती है और वो एक अपने अंदर एक नया एक निखार, एक रूहानी मतलब एक तब्दीली पैदा महसूस करती है, वो मैंने किया और वो लगातार मैं अब उस टाइम से अभी तक भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं नुमान भाई जी। वो वाक़या भी शुरू करता हूँ। मेरे इलाके से यहाँ से 150 किलोमीटर दूर दिल्ली क्रॉस करके हरियाणा में ही आती पलवल एक जगह होती है। मैं पलवल में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया पहली बार 2008 में और वहाँ से दिल्ली मिशन जो होता था वो 60 किलोमीटर होता था। मैं हर जुम्मे उधर आता था जुम्मा पढ़ने के लिए और जो मेरी ज़रूरत की जो कारोबारी जो चीज़ें होती थी वो मैं दिल्ली से खरीद के वापस मैं उधर साइट पे चला जाता था पलवल में। ये उधर मेरा 6-7 महीने काम चलता रहा। उसके बीच में मुझे हमारे अमीर साहब की तरफ से फ़ोन आया कि आपको कादियान में शूरा की जो मजलिस है उसका मेंबर चुना गया है, उसकी नुमाइंदगी आपने करनी है। तो मैंने लब्बैक किया उस पे और मैं जैसे ही जुम्मे के लिए आया तो मैंने उधर ज़िक्र किया कि ऐसे-ऐसे मुझे कादियान जाना है क्योंकि उधर दिल्ली मिशन से भी काफ़ी लोगों को नुमाइंदगी करनी थी शूरा में। तो उधर हमारे काशिफ़ साहब होते थे मौलवी, वो मेरा एक दोस्त भी था। मैंने उसको बताया, वो बोला ठीक है उमैद भाई, इधर से भी काफ़ी लोग जा रहे हैं और ये नेक्स्ट संडे का नहीं नेक्स्ट थर्सडे का प्रोग्राम है, तो वो नाइट में मैं इधर से टिकट करवा दूँगा आपकी भी, तो आप उनके साथ चले जाइए। और नाइट सर्विस होती है और दिल्ली से चलती पंजाब अमृतसर के लिए एक बस चलती है लाल किला और जामा मस्जिद के सामने से। तो जैसे वक़्त आया तो हम पहुँच गए और उसने टिकटें जो बाय की हुई थी हमें टिकटें दे के तो वहाँ से ट्रैवल जो एजेंट होता है उससे कॉन्टैक्ट करवा के वो चले गए। करीब ये 9 बजे हम पहुँचे थे इसी टाइम और 10 बजे वहाँ से बस चलनी थी। तो वो बस चलते-चलते बहरहाल वो लेट हो गया और वो लेट होने के बाद जैसे ही दिल्ली से हम आउट साइड पे गए, तो बस में कंडक्टर ने आवाज़ लगाई कि इस बस में कुछ लोग हैं जो कादियाँ जाने वाले हैं। तो हमने उस टाइम रात के करीब 11 बज गए थे। तो हमने उसको बताया कि हाँ भाई हम हैं जाने वाले, हम 4 बंदे थे। एक मैं था, 3 बंदे और थे। तो उसने हमें कॉल किया कि नोटिस ये दिया उसने कि जो हमारा जो टूर था वो था जाने वाला बटाला से होके। वो टूर अब चेंज हो गया है, हम जाएँगे ब्यास से सीधे निकलेंगे अमृतसर के लिए। हम ब्यास से बटाला होके अमृतसर नहीं जाएँगे। तो हमने उनसे शिकायत की भई ये तो अच्छी बात नहीं है, हमसे तो ये कमिटमेंट हुआ था। वो बोला कि वो कमिटमेंट जिससे हुआ था आप उससे बात करो। बहरहाल नाइट हो गई थी, अब किससे क्या बात करनी थी, हम दुआ करते रहे और बस चल तो रही थी, वो रात का टाइम था। तो हुआ ये भाईजान पूरी नाइट बस चलती रही, जालंधर आने के बाद
किसी वजह से वो धुंध की वजह से रास्ता वो भटक के वो टांडा वाले रास्ते पे लग गए, और टांडा वाले रास्ते पे ये पठानकोट वाला रास्ता पे बीच में टांडा आता है, तो उस रास्ते पे वो चले गए, और वहाँ जाने के बाद वो आपस में ही बहस करने लगे। तो हमारी नींद खुली कि ये क्या हो गया, थोड़ी बेचैनी वाली थी, नींद आई हुई थी। तो हमने देखा तो वो बहस कर रहे कि तुम इस रास्ते पे कहाँ आ गए, ये वो। उसने फिर बताया कि मौसम खराब था, धुंध की वजह से हम यहाँ आ गए हैं। तो थोड़ा उस इलाके से मैं वाकिफ था। वो जो 2 साथ वाले थे बंदे, 3 बंदे, वो वाकिफ नहीं थे। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बात की, बोला कि ये पहले ही हमें दूसरे रास्ते पे छोड़ने वाले थे, अब तो हम लेट हो जाएंगे, सूरा में नहीं पहुंच पाएंगे। सुबह 4 बजे की बात है। तो उन्होंने कुछ दूर पे जाके बस रोक दी और भी लेट कर दिए। तो अब वो मर्जी के मालिक थे, ऐसे ही चलता रहा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई चलो, उन्होंने बोले आगे रास्ता बंद है, ये है वो है। करते करते बहरहाल वो चल पड़े, और आगे जाने के बाद उन्होंने टांडा से हरचुआल होके, और वही उसी रास्ते पे आगे मैं वाकिफ था उस रास्ते से, टांडा से हरचुआल से कादियान होते हुए वो रास्ता बटाला, और बटाला से फिर अमृतसर जाना था। मतलब वो रास्ता वही था वहां से, और दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो वो टांडा से हरचुआल चले, हरचुआल से वो जब उधर एक कालवा एक जगह आती है कादियां से 3 किलोमीटर पहले, उधर जब वो गए तो वहां से क्या हुआ, आगे कुछ स्ट्राइक चल रही थी, ये सिख लोग कुछ स्ट्राइक कर रहे थे, उस वजह से उन्होंने वो रास्ता, मेन रास्ता बंद कर रखा था। तो कादियां पिंड की तरफ से उन्होंने, मियाँ साहब का बाग होता था, उस साइड से उन्होंने बस निकालनी पड़ी, और वो एन चुंगी पे जाके, जहाँ खिलाफत जुबली का भी गेट बना हुआ है, वहाँ चुंगी पे जाके उन्होंने हमें आवाज लगाई, हाँ भाई कादियां वाले कुछ बंदे थे, वो उठ जाओ और उतर जाओ। हम अलर्ट पे पहले ही थे। तो वो तीनों बंदे उतर गए। जब मैं उतरने लगा तो मैंने उनसे सवाल किया, माँ भाईजान आप तो बोल रहे थे कि हम तो बटाला भी नहीं जाएंगे, और आप तो कादियान आ गए हो। न बोला हम रास्ता भटक गए हैं इसलिए कादियान आ गए। तो मैंने उनको बोला, भाईजान वैसे नहीं, जहाँ तक मैंने समझा है, यहाँ वही लोग आते हैं जो रास्ता भटके हुए जो लोग होते हैं नी, वही कादियान आते हैं। और ये जो चीज है नी, ये मैंने उसको बताई तो बंदा मुस्कुराया, और वो फिर सी यू करके वो, क्योंकि वो जल्दी में थे, लेट तो ही गए थे। ये एक मौजज़ा था, यानी कि कहाँ वो हमें कहीं दूर रास्ते पे 70-80 किलोमीटर दूर छोड़ने वाले थे, और कहाँ मतलब कि खुदा ने उनको किस किस तरीके से कैसे भटके हैं, कैसे भटकाया है। हम एन टाइम पे 9:30 बजे पहला इजलास शुरू होने वाला था सूरा का, और हम ठीक 8:50 पे हम दारुल जियाफत में थे सभी लोग, और हमने वहाँ आके फ्रेश हुए, हमने नाश्ता किया, बड़े आराम से, हम बड़े इत्मीनान से हम पहले इजलास में शामिल हो गए। ये एक मेरी लाइफ का ज़बरदस्त मौज़ा है, और इसके अलावा और टाइम है तो काफ़ी हैं। मेरे साथ काफ़ी वाक़या ऐसे हुए हैं ये अहमदियत में आने के बाद। मैंने जो जो दुआ की है खुदा ने वो कबूल की है, और मैंने जो जो दीन के हक में दुआ की है, रिश्तेदारों के हक में दुआ की है, परिवार के हक में की है, मेरी औलाद के, खुदा ने बिल्कुल मुझे हूबहू वो चीज़ें तुरंत या कुछ टाइम के बाद या कुछ अरसे के बाद या कुछ साल के बाद वो चीज़ से नवाजा है। ये ज़बरदस्त मतलब कि एक मजबूत करता है जमात अहमदियत के प्रति मुझे एक पक्का और सच्चा अहमदी बनने में। जी उमेद भाई, अब आप दूसरा वाक़या सुना दें जो आपने सुनाना है।
नुमान भाई, वाकया ये है कि वैसे तो मतलब कि मैं जैसा मैंने बताया, मेरे साथ मतलब कि काफी कमाल की जो एक खुदा का फजल जो होता है नहीं, वो बहुत है वाकया। लेकिन उसमें से अभी लेटेस्ट अभी कोविड के बाद, कोविड में भी हमें काफी मेहनत की हमारे खुदामों ने, और वो जो भी हिदायत मिली थी मरकज की तरफ से, हमने उसको फॉलो करते हुए काफी ताउन किया और काफी लोगों को मदद पहुंचाई। लेकिन उसके बाद जैसे काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लमें आ गई थी पूरी सब लोगों को, क्योंकि 2 साल बिल्कुल लॉकडाउन में रहे इधर। उसके बाद मैंने पहली बार, मेरा वीजा खत्म हो गया था, पुराना जो वीजा था। अभी 19 में जो 2019 में मैंने वीजा पहला लिया, वो तो फिर 19 में, 20 में, 21 में खत्म हो गया समझो। फिर मैंने अभी नया जो वीजा लिया, फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम थी, मकबूल भाई को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो मेरा वीज़ा अप्लाई करना है, अक्सर ख्वाहिश रखता है लंदन जाने की, और खुदा तौफीक दे कि उधर मैं जलसे में भी शामिल हूँ, जो कि वो जलसे के लिए तो मरकज़ की तरफ से भी और हजूर की तरफ से भी मना था। लेकिन मेरे और कुछ गर्ज होती हैं उधर जाने की, दोस्तों से मुलाकात करने की, तो ये था। तो उसमें हुआ ये कि जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने 6 मंथ के लिए अपील की थी वीज़ा की। लेकिन मकबूल भाई जैसा मैंने बताया, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, अहमदियों का नहीं बल्कि गैर अहमदियों का भी, गैर मुस्लिमों का भी वो कोई चार्ज नहीं करते। खुदा उनको जज़ाए खैर दे, वो बहुत ही मतलब कि खिदमत गुजार बंदे हैं हर लिहाज से। तो उन्होंने मेरा जो वीज़ा अप्लाई किया, तो उसने बताया कि उमेर भाई आपके इतने वीज़े लगे हुए हैं, आप 2 साल का वीज़ा अप्लाई करो। मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इतना फीस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहरहाल क्या हुआ, उसने मेरा फॉर्म फिल कर दिया और वो अपॉइंटमेंट डेट मिले ना 6 मंथ वाली, तो बोला कि अभी आप मगरिब के बाद आइए, फिर बोला ईशा के बाद आइए। एक जिस दिन लास्ट फाइनल करना था, उस दिन मैं ईशा के बाद से लेके मैं 2 घंटे उधर लगा के आया, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिली 6 मंथ की। अगले दिन फिर उसने मुझे कॉल किया कि अब आ जाइए आप। मैं उधर गया, तो फिर उसने ट्राई किया 6 मंथ के लिए, नहीं मिला। तो फिर मकबूल भाई ने क्या किया कि 2 ईयर का उसने अपनी मर्जी से, वैसे ट्राई कर रहा था, डाल दिया, 2 ईयर के लिए अपील किया, तो अपॉइंटमेंट मिल रहा था उधर। उसने मुझे बोला कि उमेर भाई 2 ईयर का आपको अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, और अब आप बताओ। मैं बोला ऐसे ऐसे बात है। मैं बोला कोई बात नहीं है, आप दुआ करो, बैतुल दुआ जाओ, मैं भी दुआ करता हूँ, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। तो मैं भी जो है ज़्यादा मतलब यकीन करने वाला ही बंदा हूँ, खासकर उस मामले में जिस मामले में मुझे नॉलेज नहीं होती। जैसे आपको नॉलेज है किसी काम की, मकबूल भाई को है उस काम की, तो मैंने उस पर लबैक कर दिया और रब का नाम लेके अपील कर दिया 2 साल। और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट मिली, जो भी सिंपल है इंटरव्यू होता है उधर, VFS होती है हमारी दिल्ली में, उधर में गया, फाइल सबमिट होगी। उन्होंने बोला कि कोविड की वजह से काफ़ी पेंडिंग चल रही हैं वीज़ा फाइलें, तो आपका महीने के बाद 2 वीक में आएगा रिजल्ट, यानी कि 1 महीने के बाद 1.5 महीने तक आएगा। तो चलो, वो तो आना ही था, सबके लिए था। मैं वेट करता रहा। पहली बार मेरा वीज़ा जो है नहीं, मेरा नहीं सब लोगों का, लेकिन औरों का देखते हुए मेरा बहुत ठीक टाइम पे आया। मेरा आया 74 डेज में रिजल्ट आया, और माशाल्लाह खुदा के फजल से जो है नहीं, वो मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आया।
اور وہ مجھے 2 ایئر کا اس نے اپلائی کیا تھا، مجھے 2 ایئر کا ویزا ملا جو ابھی بھی میرا ویلڈ ہے، ویزا ہے 1 سال کا۔ اور خاکسار ابھی بہت جلد ہی دوبارہ پھر خواہش رکھتا ہے لندن جانے کی، خدا توفیق دے اور حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ بس یہ دعا کرو، کیونکہ یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے، کیونکہ جن لوگوں کے 10 15 لاکھ بینک بیلنس بھی ہوتے ہیں اور بھی اناب شناب خرچے ہوتے ہیں تو بھی، اور ان کے ویزے بھی مطلب کہ 1 سال تک والے بندے بھی مجھے ادھر ملے جنہوں نے 1 سال ہو گیا ویزا اپلائی کرے ہوئے، ان کے رزلٹ نہیں آئے، کسی کو 6 مہینے ہو گئے۔ یعنی کہ میرا جو ہے قریب 2.5 مہینے میں موٹا موٹی آپ مان کے چلو کہ رزلٹ آیا، مجھے 2.5 مہینے والا کوئی بندہ نہیں ملا جو کہ اکیلا، کیونکہ بیچ بیچ میں جاتے تھے پتہ کرنے کے لیے تو کوئی 4 مہینے، کوئی 6 مہینے، کوئی 8 مہینے والے ایسے بندے ملتے تھے، تب مجھے تسلی ہوتی تھی کہ ہاں مطلب کہ کچھ خدا کا مطلب ایک حوصلہ یہ ہوتا تھا کہ میرا تو ابھی بہت کم ٹائم ہوا ہے، یہ اتنے ٹائم والے صبر کر رہے ہیں تو آپ بھی صبر کرو۔ اور ان اللہ مع صابرین، یہ ایک قرآن میں ایک آیت بھی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ تو دعا کرتے رہے، اور پھر جیسے ہی ایمبیسی سے کال آیا اور میری فائل کلیکٹ کرنے کے لیے گیا تو میرا رزلٹ پازیٹیو آیا۔ اور یہ سب جو ہے نی مقبول بھائی کی محنتوں کا اور کوششوں کا اور خدا کا فضل یہ ہوا خاکسار پہ، یہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور ہمارے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خلیفہ وقت جو جن کی جو نیک نیتی سے جو ارادہ بھی نیت بھی رکھتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لیے جو ہمارے ایک امام صاحب ہیں جس کے ایک اشارے پہ پوری احمدیت قوم اس کنارے سے لے کے دنیا کے اس کنارے تک لبیک کرتی ہے اور اشارے پہ اٹھتی بیٹھتی ہے، اور اس کی دعاؤں کا ہی یہ ایک اثر ہے۔ یہ بڑی کمال کی چیز ہے، یہ اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور یہ وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں یا وہی لوگ اس کا جو ہے نی خاصیت اور اس کی خوبیاں محسوس کرتے ہیں جو خلافت کے ٹچ میں رہتے ہیں۔ نعمان بھائی جزاک اللہ، بہت بہت آپ نے بہت ایمان افروز واقعات سنایا ہے، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی عمید بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیو، سب کو سلام بولیو۔ آپ اگر اور ساروں کو یہ بھی دکھا دیں کہ آپ کے بیٹوں کو ماشاءاللہ کلمہ بھی آتا ہے، اگر آپ ان کو لانا چاہیں ان کا بھی دکھا دیں آپ۔ یہ جو چیز ہے نا نعمان بھائی، یہ بڑی کمال کی ہے۔ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے، ہمارے ادھر ایک مبلغ ہوتے ہیں ہمارے ہریانہ کے ہی ہیں، جی ان کا بیٹا اور میرے بیٹے میں 1 سال کا فرق ہے، نہیں سوری اچھا، 1 دن کا، سوری 1 دن کا فرق ہے۔ ہاں اور جی یہ دونوں بچے جو ہیں نی، یہ خدا کا فضل ہے، یہ وقت پہ 9 بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نی ان کی جو تربیت ہے اور ان کا جو شکشا بھی بیسک جو ماحول جو ان کو ملا ہوا ہے وہ اس کا اثر کافی ہے۔ یہ بچپن سے ہی اس عمر کے اوروں کے بچوں میں اتنی مطلب لگن نہیں ہوتی احمدیت کے پرتی، اور یہ محض خدا کا فضل ہے، اور یہ خلیفہ کی دعائیں ہیں، اور یہ وقت میں اس وجہ سے بھی مطلب کہ خاص دعائیں ہیں حضور کی، اس کی برکتیں ہیں۔ الحمدللہ۔ آئی میرا بچہ، آئی میرا بچہ، ماشاءاللہ۔ وہ دیکھو یہ انکل ابھی آپ سے بات کرے گا، آپ سلام بولو، سلام۔ ہاں 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 سلام بولو، سلام۔ اچھا سر جی کلمہ سناؤ بچہ۔ اوئے میرا بچہ، یہ نعمان بھائی یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، سرجیل احمد سراج اس کا نام ہے، یہ حضور کی طرف سے نام آیا ہے، یہ وقت 9 ہے۔ یہ میرا ماشاءاللہ۔ بڑا بیٹا ہے نور احمد سراج اس کا نام ہے،
یہ بھی وقف 9 ہے، ان کا بھی ظہور کی طرف سے نام آیا ہے۔ اب یہ میرا بڑا بیٹا ہے نور احمد سراج، یہ ابھی آپ کا تعارف کروائے گا۔ بیٹا نام بتاؤ۔ ہاں ادھر دیکھ کے ان کو، کیا نام آپ کا؟ نور احمد۔ اچھا کلمہ سناؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرا بچہ، اچھا اپنے نبی کا نام بتاؤ۔ محمد صاحب۔ محمد صاحب کی نگری کون سی ہے؟ مکہ مدینہ۔ مکہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اپنے مسیح کا کیا نام ہے؟ مسیح کا غلام احمد۔ ہاں، اور مسیح کی نگری؟ مکہ مدینہ قادیان۔ قادیان۔ اور اپنے امام صاحب کا کیا نام ہے؟ مرزا غلام احمد۔ نا امام صاحب کا، لندن میں رہتے ہیں ان کا تو بتا۔ نا، ہاں مرزا مرزا مسرور احمد۔ ہاں کہاں رہتے ہیں امام صاحب؟ لندن۔ لندن میں۔ یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ تھوڑا نروس سا ہو جاتا کئی بار، یہ اس پہ دھیان زیادہ دے رہا ہے اسکرین پہ، اس وجہ سے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ یہ بھی دین کی انشاءاللہ بہت خدمت کریں، آمین۔ خدمت کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھو انکل بول رہے ہیں بچہ نماز پڑھا کرو، اور یہ میرا بیٹا نہیں، دونوں بیٹے میرے جب نماز پڑھتے ہیں یا نماز کے لیے کوئی نئے احمدی یا غیر احمدی بھی کوئی دوست میرے آتے ہیں گھر پہ، ان کے لیے جے نماز وہ بچھاتے ہیں اور ٹوپیاں دیتے ہیں ان کو، وضو کے لیے ان کو یہ بولتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایک خاص ایک اثر ہوتا ہے احمدی بچوں پہ، ہاں جی اور بالکل۔ اس معاملے میں وہ کافی تعریف کرتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تعریف کرنی پڑتی ہے ان کو، وہ کرنا نہیں چاہتے لیکن کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ ریئلٹی ہے، وہ نظر آتی ہے ان کو، اور وہ پھر بعد میں مطلب مجبور بھی ہو جاتے ہیں کئی موقعوں پہ اس چیز کو ماننے کے لیے کہ ہاں واقعی میں مطلب کہ یہ چیز ہے ان کے اندر، جو کہ ہمارے بچوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا فضل ہے خدا کا، کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں نہیں، جو ہمارے اعمال ہیں وہ اصل میں تبلیغ تو وہی چیز کرتے ہیں۔ ہم جیسے غیر ملاؤں کی طرف کرتے ہیں یا لگا لیں، داڑھی بڑھا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، نماز کے لیے اور ساتھ میں اندر سے بالکل خالی ہوں نماز کے لیے، اور اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں۔ گھر میں جب جائیں تو ٹی وی چلے ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی طور طریقے نہیں ہیں، اور احمدی گھروں میں جب جاؤ گے چھوٹے چھوٹے بچے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بھی ایک تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں اپنے رنگ میں ایک اسلام احمدیت کی۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے عمید بھائی، جزاک اللہ بہت بہت، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم آپ کے لیے سارے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے کہ آپ دین کی خدمت کریں، اور ہمیں بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام اللہ علیکم حافظ، ورحمۃ جزاک اللہ اللہ، وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد